آپ کو بتائیں کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر جیل کی ہوا کھانی ہوگی، بغیر رجسٹرڈ گاڑی بیچنے پر شو روم سیل، چلانے پر گاڑی ضبط ہوگی۔ شہر قائد میں ٹریفک کے بڑھتے حادثات کے پیش نظر حکومت سندھ کے بڑے فیصلے، ہیوی ٹریفک وہیکل کو رات 10 سے صبح 6 بجے تک چلنے کی اجازت ہوگی۔ جبکہ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بارکوڈ کے بغیر واٹر ٹینکر سڑکوں پر نہیں دوڑیں گے۔ پورے شہر سے چارج پارکنگ ختم کی جا رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ اسلحے کی نمائش نہیں کر سکے گا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ حکومت سندھ ٹریفک حادثات پر قابو پانے کے لیے متحرک، بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر پابندی، ہیوی ٹریفک کے لیے اوقات کار مقرر، گاڑیاں رجسٹریشن کے بعد باہر لانے کی ہدایت کر دی، چارج پارکنگ ختم، بار کوڈ کے بغیر واٹر ٹینکر نہیں چلیں گے۔ بغیر لائسنس کے کوئی بھی شخص گاڑی چلائے گا تو وہ گرفتار ہوگا۔ ہیوی ٹریفک جو ہے جو بھی اس پرپز سے آ رہی ہے وہ 10 بجے سے لے کے صبح کو 6 بجے تک وہ لا سکے گی۔ جتنی بھی شہر بھر میں چارج پارکنگز ہیں، چاہے اس کو کے ایم سی چارج کر رہی ہے یا ڈی ایم سی چارج کر رہی ہیں، فوری طور پر ختم کی جا رہی ہیں چارج پارکنگز۔ وزیر سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ٹریفک مسائل اور روڈ حادثات پر اہم اجلاس ہوا۔ سینئر وزیر اور وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہو گئے۔ واٹر بورڈ کے ٹینکر بارکوڈ کے ساتھ چلنے کے پابند ہوں گے، ڈمپرز کی ٹائمنگ بھی تبدیل، اب یہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک چل سکیں گے۔ رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک 1 گھنٹے کا اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہیوی ٹریفک جو ہے جو بھی اس پرپز سے آ رہی ہے وہ 10 بجے سے لے کے صبح کو 6 بجے تک وہ لا سکے گی کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ جس کے اندر ٹریفک بھی آتا ہے، اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ مل کر اسٹریٹجیز بنائیں گے، مل کر اسے پلان بنائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سسٹم یہ کہ ٹریفک کی جو ہے موٹر وہیکل کی انسپیکشن ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پورے شہر سے چارج پارکنگ ختم کی جا رہی ہے، بچہ ہو یا بڑا لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ نہیں کر سکیں گے، قانون کی خلاف ورزی پر جیل جانا پڑے گا۔ محکمہ ایکسائز نے 80,000 نمبر پلیٹس تیار کر لی، دیگر صوبوں سے آنے والی گاڑیوں کو سندھ کا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ جتنی بھی شہر بھر میں چارج پارکنگز ہیں، چاہے اس کو کے ایم سی چارج کر رہی ہے یا ڈی ایم سی چارج کر رہی ہیں، فوری طور پر ختم کی جا رہی ہیں چارج پارکنگز۔ بغیر لائسنس کے کوئی بھی شخص گاڑی چلائے گا تو وہ گرفتار ہوگا۔ کوئی بھی ایسی گاڑی جو ڈبل کیبن ہوگی کسی بھی برانڈ کی، چاہے وہ امپورٹڈ ہے یا لوکل ہے، اس نے رجسٹر ہونا ہے۔ سینئر وزیر کا کہنا ہے کہ فیک نمبر پلیٹ، فیک ڈرائیونگ لائسنس پر بھی کارروائی ہوگی۔ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ اسلحے کی نمائش نہیں کر سکے گا، پولیس کا سپاہی بھی سادہ لباس میں اسلحہ نہیں اٹھائے گا۔ میں یا میرے فیملی ممبر کو بھی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر چالان دیا جائے، پولیس ہو یا پھر سیکیورٹی گارڈ، ڈالے پر کوئی نہیں بیٹھے گا۔ وزیر داخلہ سندھ نے قانون سب کے لیے برابر کا نعرہ دے دیا ہے، کام نہ کرنے والے پولیس افسران کو عہدوں سے ہاتھ دھونے کا عندیہ بھی دے دیا۔ پیر سے ایس ایس پیز ٹریفک کو سڑکوں پر آنے کا حکم۔ وزیر داخلہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ڈرائیورز کا میڈیکل کرایا جائے، بھاری گاڑیوں کی فٹنس اور انسپیکشن کی جائے، اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی سخت اقدامات جاری کیے جائیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹریفک قوانین سب کے لیے برابر، میں یا میری فیملی بھی خلاف ورزی کرے تو چلان کر دیا جائے، وزیر داخلہ سندھ نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ ڈبل پارکنگ پر متعلقہ ایس ایچ او کو بلیک لسٹ کرنے کا بھی عند دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد۔ ٹریفک حادثات کے اسباب، روک تھام کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس، ٹریفک کے حوالے سے احکامات دیے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی چلان ٹکٹس کے اجرا کا اختیار دے دیا۔ پولیس اور ٹریفک پولیس کو پیر تک کا وقت دے دیا۔ بصورت دیگر افسران کو عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ضیاء لنجار نے واضح کیا کہ وہ یا ان کی فیملی کا کوئی فرد بھی ٹریفک رولز توڑے تو چلان کیا جائے۔ اسلحہ کی نمائش پر عمل درآمد کرنے کا حکم۔ بولے سیکورٹی گارڈ یا پولیس اہلکار ڈالے پر نہیں بیٹھے گا۔ وزیر داخلہ نے ڈی آئی جی ٹریفک کو ہدایت کی کہ وہ میئر کراچی کے پاس دستیاب واٹر ٹینکر کی فہرست پر مل کر لاہ عمل تیار کریں۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ فینسی نمبر پلیٹس، رنگین شیشوں، بلیو لائٹس، پریشر ہارنز وغیرہ کے خلاف جاری مہم کو تیز کیا جائے۔ اجلاس میں آئی جی غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جیز ہیڈ کوارٹرز، ڈی ایل برانچ ٹریفک سمیت تمام ایس ایس پیز کراچی و ٹریفک زونز کے علاوہ اے آئی جی آپریشن سندھ نے شرکت کی۔ شہر قائد میں پے در پے ٹریفک حادثات، چیف سیکرٹری سندھ نے ڈی آئی جی ٹریفک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ پیر محمد شاہ ڈی آئی جی ٹریفک تعینات، جنوری سے اب تک 104 شہری ٹریفک حادثات میں جان سے گئے تھے۔
जबकि 1400 से जायद शहरी मुख्तलिफ हादसात में अब तक जख्मी हो चुके हैं। ट्रैफिक के 3 SSPs को तब्दील करने के बाद भी ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर न हो सकी थी। आपको बताएं कि तेज रफ्तार टैंकर का मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर हलाक करने का मुकदमा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम ड्राइवर हयात को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी के रूबरू पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर मुकदमे का अबूरी चालान तलब कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसा 3 रोज कबल पेश आया था, जब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दानियाल जान की बाजी हार गया था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना मंगू पीर में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, खता और कत्ल बिल सबब की दफात शामिल हैं। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली ने भी डंपर समेत हैवी ट्रैफिक के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने में मुतालबा कर दिया। आगा सिराज ने कहा है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, इसमें पुलिस की नफरी होनी चाहिए। जबकि एहतसाब अदालत में साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की गई। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास एक बेसिक एथिक्स होने चाहिए ड्राइविंग के, और मेरा ख्याल है कि कोई डिसीजन हुआ था इनका जिसमें यही था कि हैवी ट्रैफिक जो है रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगी। तो उसमें नेचुरली कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको कुछ पता ही नहीं है कानून का कि ट्रैफिक का कानून क्या होता है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि बिफोर लाइसेंस इशू करने से पहले और नाजरीन, डंपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से गाड़ियां जलाने पर मुआवजे का मुतालबा कर दिया गया। एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद कहते हैं कि नामालूम अफराद ने गाड़ियां जलाई जिसमें 20 करोड़ रुपए तक नुकसान हुआ है। और हमारे ट्रांसपोर्टर का कुछ दिन पहले जो कम से कम 8 से 10 गाड़ी और नामालूम अफराद ने जलाया, तो उसके बारे में मैं खसूस सिंध गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वो भी गरीब लोग हैं, कम से कम 19 करोड़ 19 से लेकर 20 करोड़ तक नुकसान भी हुआ, कोई लोड गाड़ी था, तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं इंतजामिया के साथ बात भी कर दूंगा, तो उसके साथ बैठने में एक रास्ता भी निकाल दूंगा। और बकाया हमारा जितना ट्रांसपोर्टर भी है वो खसूस ड्राइवर को मैं ये हिदायत भी कर दूंगा, और जितना ड्राइवरान है जो स्पीड नहीं मारे, इसमें जानी और माली नुकसान भी है। बकाया हमारे और जितना मुसलमान है और जितना पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी एक भाई भी है, लेकिन चाहे सरकार होगा या आवाम होगा, सबसे पहले अल्लाह के अलावा, उसके बाद सरकार आवाम के अलावा कुछ नहीं है, आवाम सरकार के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्र कैद और सजाए मौत के कैदियों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर अहमद का बड़ा ऐलान। उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध हुकूमत के महकमा तालीम और महकमा जेल खाना जात में MOU साइन हो गया है। रिपोर्ट करेंगी अनुषा जाफरी। जुर्म वालिदैन ने किया, बच्चे क्यों रहे महरूम। सजाए मौत और उम्र कैद के कैदियों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने का फैसला। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि रोजगार भी दिया जाएगा। प्राइवेट तालीम हासिल करने वाले बच्चों को भी सपोर्ट किया जाएगा। महकमा तालीम महकमा जेल के माबैन MOU पर दस्तखत। IG जेल खाना जात सिंध काजी नज़ीर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सजाए मौत और उम्र भर कैद के सजा पाने वाले कैदियों के बच्चों की तालीम अब महकमा जेल की जिम्मेदारी होगी। प्राइवेट स्कूलों में अगर किसी कैदी का बच्चा पढ़ रहा होगा तो महकमा जेल इसकी जिम्मेदारी भी लेगा। मुफ्त तालीम के साथ रोजगार भी फराहम करेंगे। दुनिया में हर जगह सिर्फ ये होता है कि कैदियों को रिहेबिलिटेट करें और वापस करें, और उनको पढ़ाना चाहें तो उनको पढ़ाएं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, जिनको भी हक है तालीम हासिल करने का, क्योंकि इनके बड़े अंदर हैं तो उनकी देखभाल करने वाला, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव ऐसा है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चा पढ़ सके। SSP जेल खाना जात अब्दुल करीम अब्बासी ने कैदियों को मुखातिब करके कहा, ये आप सबके लिए बेहतरीन मौका है। आपके बच्चों के लिए पहली से लेके यूनिवर्सिटीज तक, चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो यूनिवर्सिटीज, वो प्रिजन डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके आपके बच्चों को तालीम के जेवर से
आरास्ता करेंगे। डीआईजी जेल खाना जात हसन सेठो ने कैदियों से कहा, अब आप सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। हमारे कैदी जेल में बैठ के कितने पैसे कमा रहे हैं, अपने घर वालों की किफालत करें, लेकिन इससे आगे का कदम अभी सिंध हुकूमत ने दिया है। पैगाम पाकिस्तान एक प्रोग्राम शुरू किया है इंशाल्लाह। तो जिनकी फ़िक्र आपको होनी चाहिए कि मैं जेल में हूँ, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो वो इंशाल्लाह अभी आईजी साहब ने बताया कि ये प्रोग्राम सिंध हुकूमत इनिशिएटिव सिंध से लिया है, पूरे पाकिस्तान में होगा, लेकिन ये स्टार्टिंग जो सिंध से हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में गवर्नमेंट अपने खर्चे में पढ़ाएगी। हुकूमत के फैसले से सजाए मौत के कैदी भी खुश, फैसले को बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। बिल्कुल ऐसा है कि थोड़ा सा एक ठंडी हवा का झोंका के मानिंद है कि नहीं, एक गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और आईजी जेल खाना जात के तरफ से, जो हमेशा हमारे साथ ही बहुत अच्छे पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खुशी की बात है ये गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली तौर पर। इस मौके पर आईजी जेल के मुख्तलिफ कोर्सेज करने वाले कैदियों को शील्ड पेश की। कैमरामैन हसैन जाफरी के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मलीर मुराद मेमन सब डिवीजन में ज़मीन की तकसीम के नाम पर रिश्वत वसूली का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर एजाज के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। जारी किए जाने वाले नोटिस की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर एजाज हालीपोटो ने शरफुद्दीन नामी स्टेट एजेंट से 12 लाख रुपए वसूल किए। रकम ज़मीन की पार्टीशन के नाम पर वसूल की गई। बाद में असिस्टेंट कमिश्नर एजाज हालीपोटो का ठट्ठा तबादला हो गया। मुद्दई की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू कर दी गई। नोटिस में असिस्टेंट कमिश्नर एजाज हालीपोटो को डायरेक्टर इंक्वायरीज 2 के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई है और इन्हें मुराद मेमन सब डिवीजन में ज़मीनों की पार्टीशन का रिकॉर्ड भी साथ लाने का हुक्म दिया गया है। महकमा मवेशी और माहीगीरी ड्यूटी चोर मुलाजमीन मुअत्तल। सेक्रेटरी मवेशी और माहीगीरी ने ड्यूटी चोर 14 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। महकमा मवेशी और माहीगीरी ने मुअत्तली के 2 अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि मुल्क में डेयरी फार्मर्स की जानिब से मनमानियों का सिलसिला जारी है। दालें, चावल और आटे की कीमतों में कमी, मगर दूध ताहाल महंगा है। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि महंगाई की वजह से जनवरी 2024 में जानवरों का चारा महंगा हुआ था और दूध की कीमत बढ़ गई थी। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। दूध की कीमतों में कमी व बेशी डेयरी एंड से होता है। हमारा तो अपना एक मुतालबा है, हम उसके लिए मुसलसल रो रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ खतूत लिख रहे हैं कि रिटेलर्स को 15 रुपये में गुजारा नहीं है, हमारे अखराजात में इजाफा किया जाए। तो ये मुतालबा होगा कि कमिश्नर साहब फौरी तौर पर मीटिंग बुलाएं और दोबारा एक फ़्रेश नोटिफिकेशन, जो कि उनके वादे के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 के बाद वो मुआहदा ख़त्म हो चुका है, एक नया नोटिफिकेशन जारी। यूनिवर्सिटीज़ में वीसी तयनाती तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात खातिर में न लाने का फैसला। सिंध काबीना हफ्ते को जामियात तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात पर गौर करेगी। सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल एक बार फिर काबीना और असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला। बिल में कोई तरमीम नहीं की जा रही। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक सिंध काबीना से दोबारा मंजूरी के बाद सिंध असम्बली से जामियात तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाएगा। सिंध असम्बली से दोबारा बिल मंजूर होने के बाद गवर्नर सिंध की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नर सिंध बिल को 10 रोज़ में मंजूर नहीं करते तो बिल कानून का हिस्सा बन जाएगा। आपको बताएं कि रोज़ बरोज़ सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों के होश ठिकाने लगा दिए। सोना फिर महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $25 महंगा हो गया, जिसके बाद मकामी सतह पर फी तोला सोना 2500 रुपये और 10 ग्राम सोने में 2144 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $25 का इजाफा हुआ, जिसके बाद $2913 फी औंस पर पहुंच गया। मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 2500 रुपये महंगा हो गया। आपको बताएं कि शेयर्स की फरोख्त तरजीह है। स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव के साथ मनफी इख्तिताम हुआ। इंडेक्स 360 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,12,564 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में कारोबार के दौरान सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदो फरोख्त देखी गई, जिस बायस मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान रिकॉर्ड किया गया।